اور شروعات پاکستان سے کریں گے، جہاں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ اور ہندوستان کو مطلوب دہشت گرد حافظ سعید کو 2 مقدمات میں مجموعی طور پر 11 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے دہشت گرد حافظ سعید پر 30,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ حافظ سعید کے ساتھی اور کالعدم تنظیم کے رکن ظفر اقبال کو بھی 11 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ دہشت گرد حافظ سعید کو سزا، پاکستان کی عدالت نے سنائی سزا۔ حافظ سعید کو 2 مختلف مقدمات میں 11 سال قید بامشقت کی سزا۔ دہشت گردی کے لیے فنڈ جمع کرنے کے جرم میں ملی سزا۔ ہندوستان کو کئی معاملوں میں مطلوب ہے خوخار دہشت گرد۔ لاہور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ اور ہندوستان کو مطلوب دہشت گرد حافظ سعید کو 2 الگ الگ مقدمات میں 11 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے حافظ سعید کو دہشت گردی کے لیے رقم جمع کرنے اور کالعدم تنظیم کی رکنیت کی پاداش میں یہ سزا سنائی ہے۔ حافظ سعید کے علاوہ دہشت گرد تنظیم جماعت الدعوہ کے رکن ظفر اقبال کو بھی 11 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ حافظ سعید کو انسداد دہشت گردی کی دفعہ 11F2 کے تحت کالعدم تنظیم کا رکن ہونے اور اس کی حمایت کرنے کی پاداش میں 5.5 سال قید اور 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ حافظ سعید کے خلاف قائم دوسرے مقدمے میں انسداد دہشت گردی کے ایکٹ 11N کے تحت چندہ جمع کرنے اور منی لانڈرنگ کے جرم میں بھی 5.5 سال قید اور 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ خصوصی عدالت کے جج ارشد حسن بھٹا نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ دونوں سزائیں بیک وقت شروع ہوں گی۔ قانونی ماہرین کے مطابق حافظ سعید سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ حافظ محمد سعید اس وقت گرفتار ہیں اور جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں اور انہیں فیصلے کے وقت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر لیڈروں پر غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں دسمبر 2019 میں فرد جرم عائد کی گئی تھی اور اس موقع پر ملزمین نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اپنے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ یہ الزام عالمی دباؤ کی وجہ سے لگایا گیا ہے۔ حافظ محمد سعید سمیت دیگر کے خلاف یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی کے محکمے نے درج کیا تھا، جبکہ انہیں پنجاب کے شہر گجرانوالہ سے 17 جولائی 2019 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ پنجاب کے محکمے انسداد دہشت گردی کے مطابق جماعت الدعوہ، لشکر طیبہ اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے معاملات میں بڑے پیمانے پر تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ CTD پنجاب کے مطابق ان تنظیموں نے دہشت گردی کے لیے اکٹھے کیے جانے والے فنڈز سے اثاثے بنائے اور پھر ان اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے مزید فنڈز جمع کیے۔ CTD کا موقف تھا کہ ان تنظیموں نے یہ اثاثے جات مختلف غیر سرکاری تنظیموں یا فلاحی اداروں کے نام سے بنائے اور چلائے۔ خیال رہے سن 2014 میں امریکہ نے جماعت الدعوہ کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے مالیاتی پابندیاں عائد کی تھیں۔ امریکی حکام کی جانب سے حافظ سعید کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر $1 کروڑ کے انعام کی پیشکش بھی کی گئی تھی۔ اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ نے جنوری 2015 میں اعلان کیا تھا کہ جماعت الدعوہ سمیت ان تمام دہشت گرد تنظیموں کے اثاثوں کو منجمد کیا جا چکا ہے جن پر اقوام متحدہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ خوخار دہشت گرد حافظ سعید ہندوستان کو انتہائی مطلوب ہے۔ حافظ سعید ہندوستان میں کئی دہشت گردانہ حملوں کا قصوروار ہے اور ہندوستان کی حکومت پاکستان سے بارہا یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ اسے ہندوستان کے حوالے کیا جائے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ آگے بڑھیں گے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وسطی امن منصوبے کو سوئس پنیر کی مانند قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔
फिलिस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपील की कि अमन से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेश करदा तजवीज़ तस्लीम न की जाए, क्योंकि अमरीकी सदर का अमन मंसूबे से सिर्फ इजरायली मफादात ही हासिल किए जा सकेंगे। इससे पायदार अमन का क़याम नामुमकिन है। यह तफसीली रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा सुइस पनीर की मानिंद। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा में बयान। महमूद अब्बास ने ट्रंप का मशरिक़ वस्ता अमन मंसूबा किया मुस्तरद। फिलिस्तीन अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से अपील की कि अमन से मुताल्लिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पेश करदा तजवीज़ तस्लीम न की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब करते हुए फिलिस्तीनी सदर अब्बास ने मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के अमन मंसूबे पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि यह मंसूबा फिलिस्तीनियों के तमाम हुकूक की तरदीद करता है। फिलिस्तीनी सदर ने कहा कि इससे खित्ते में क़याम अमन का मकसद हासिल नहीं होगा। महमूद अब्बास ने अमरीकी सदर ट्रंप के मुतनाज़ा अमन मंसूबे को बैरूनी तसल्लुत करार देते हुए मजीद कहा कि अगर ये मंसूबा नाफिज किया जाता है तो ये देरपा साबित नहीं होगा और पायदार अमन कायम नहीं हो सकेगा। अमरीकी तजवीज़ के बारे में महमूद अब्बास ने कहा कि यह तजवीज़ या इस तजवीज़ का कोई हिस्सा बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता। أو أي جزء منها كمرجعية دولية للتفاوض، لأنها صفقة أمريكية إسرائيلية استباقية جاءت لتصفية القضية الفلسطينية، ويكفي لرفضها من قبلنا أنها تخرج القدس الشرقية من السيادة الفلسطينية۔ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा मुजव्वज़ा अमन मुआहिदे में इजराइल को फिलिस्तीनियों के ज़ेरे इंतजाम मगरबी किनारे के बहुत बड़े हिस्से को अपने रियासती इलाके में जम करने की इजाजत दी गई है, जबकि फिलिस्तीनियों के लिए ज्यादातर सड़कों, पुलों और सुरंगों के जरिए आपस में जुड़े हुए इलाकों में मशरूत और महदूद खुद मुख्तारी की तजवीज़ दी गई है। इस मुआहिदे में तकरीबन तमाम अहम उमूर में इजराइल को ही फौकियत दी गई है। सदर ट्रंप ने जब ये मंसूबा पेश किया था उस वक्त इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू भी मौजूद थे, लेकिन फिलिस्तीनियों को व्हाइट हाउस आने की दावत तक नहीं दी गई थी। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपने खिताब के दौरान इजराइल और फिलिस्तीन का एक बड़ा नक्शा भी दिखाया जो ट्रंप अमन मुआहिदे पर मुमकिना अमल दरामद के नतीजे में सामने आएगा। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से फिलिस्तीनी रियासत का मुस्तकबिल स्विट्जरलैंड के बने हुए पनीर जैसा हो जाएगा जो फिलिस्तीनियों की खुद मुख्तारी को महदूद कर देगा। अब्बास ने स्विस पनीर की इस्तिलाह इसलिए इस्तेमाल की कि ऐसे पनीर में आमतौर पर बहुत से सुराख होते हैं। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि वो इस मुआहिदे के निफाज की मुखालफत करेंगे, लेकिन किसी तरह की दहशतगर्दी की इजाजत भी नहीं देंगे। फिलिस्तीनी सदर ने कहा कि इन्हें नहीं मालूम कि ट्रंप को यह मशवरा किसने दिया। उन्होंने अमरीकी सदर ट्रंप से इस मंसूबे को तर्क कर देने की दरख्वास्त भी की और सलामती कौंसिल से इस मामले में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने की अपील भी की। फिलिस्तीनी मरकज बराए पॉलिसी और सर्वे रिसर्च की तरफ से कराए गए एक जायजे के मुताबिक 94% फिलिस्तीनियों ने ट्रंप के इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब करते हुए सदर अब्बास ने मुतनब्बह किया कि ऐसी सूरत में पुरतशद्दुद मुजाहरे भी शुरू हो सकते हैं और सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती है। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि हमें उम्मीद की जरूरत है, बराह करम हमें हमारी उम्मीदों से महरूम न करें। सदर अब्बास की तकरीर पर तबसरा करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में इजरायली सफीर डेनी डेनिन ने कहा कि सदर अब्बास हकीकत पसंदाना रवैया अपनाना नहीं चाहते। Mr. President, let's not beat around the bush. Progress toward peace will not be made as long as President Abbas remains in his position. This is the reality. Only when he steps down can Israel and the Palestinians move forward. A leader who chooses rejectionism, incitement, and glorification of terror can never be a real partner for real peace. अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर कैलीक्राफ्ट ने भी अमरीकी मौक़िफ़ रखा और कहा कि इस सिलसिले में मुस्बत और बामाना गुफ्तगू की जरूरत है।
वाज़ेह कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अरसा कबल मशरिक़ वस्ता के लिए अपने इस अमन मंसूबे का ऐलान करते हुए कहा था कि यरूशलेम इजराइल का गैर मुनक़सिम दारुल हुकूमत रहेगा, जबकि मुस्तक़बिल की फ़िलिस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मशरिक़ी यरूशलेम होगा। इस मुजव्वज़ा मुआहदे में मगरबी किनारे के फ़िलिस्तीनी इलाके में इजरायली आबादकारी को भी तस्लीम कर लिया गया है और साथ ही मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियों के क़याम पर 4 साल की पाबंदी की भी तजवीज़ की गई है। इस मंसूबे में स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहमियत के हामिल वादी उर्दन को भी इजराइल में जम करने की इजाजत देने का तस्करा किया गया है, जो दरअसल मगरबी किनारे के इलाके के 30% हिस्से के बराबर है, जबकि दीगर यहूदी बस्तियों के इस इलाके से इल्हाक की भी इजाजत देने की बात कही गई है। इस मंसूबे के ऐलान के बाद फिलिस्तीनी सरापा एहतजाज बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने न्यूयॉर्क में इजराइल के साबिक वज़ीर-ए-आज़म यहूद ओलमर्ट से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के क़याम और फ़िलिस्तीन इजराइल तनाज़े के हल के लिए 2 रियासती फार्मूले की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे कबल फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने ट्रंप के पेश करदा अमन मंसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तरद कर दिया, जबकि इजरायली हुकूमत के जरिए ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम किया गया है। إلى رجال السلام من أمثال يهود أولمرت بالتأكيد سيكون بيننا سلام قريب، وخاصة إذا كان أيضا برعاية الأمم المتحدة، برعاية الرباعية الدولية، إضافة إلى أي جهة أخرى، لكن هذا هو أن تكون برعاية الرباعية وعلى أساس الشرعية الدولية. نحن لا نريد شيئا خارج هذه الشرعية إطلاقا. I was asked many times, why should I meet with President Abbas now? And the answer is very simple. There are plans, different plans. Now there is the plan of President Trump, which he calls the deal of a century. The plan is aimed to eventually make peace between Israel and Palestine. एक सीनियर इजरायली सिफारतकार ने फिलिस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुतालबा किया है कि वो मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को हल करने के लिए तशद्दुद को मुस्तरद करें और बराह रास्त बातचीत शुरू करें। अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के सफ़ीर डैनी डेनिन न्यूयॉर्क में सलामती कौंसिल के इजलास से कबल मशरिक़ वस्ता के बारे में अमरीकी इक़दाम पर तबादला ख्याल करने के लिए सहाफ़ियों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी सदर ने तजवीज़ पर गौर किए बगैर ही इसे मुस्तरद कर दिया है। एक मुश्तरका बयान में यूरोपीय यूनियन के ममालिक बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी, एस्टोनिया और फ्रांस के नुमाइंदों ने कहा कि वो मुज़ाकरात के तयशुदा 2 रियासती हल के लिए पुरज़्म हैं। Trump presented his prosperity for peace plan the other week. Mahmoud Abbas, he was already getting ready to come here to the UN. Without even seeing its proposal, he rejected the negotiations. Without delivering a counter-offer, Abbas has already rejected the hope for peace. तुर्की और शाम में इन दिनों जबरदस्त कशीदगी पाई जा रही है। दोनों मुल्कों की अफवाज शाम के शुमाल मगरबी सूबे इदलिब में एक दूसरे पर मुतवातिर हमले कर रही हैं। ऐसे में तुर्की ने शाम को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर शाम ने इसकी अफवाज के खिलाफ हमले नहीं रोके तो इसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम की बशार अल असद हुकूमत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर अब शामी फौज के हमले में तुर्की का एक भी फौजी जख्मी हुआ तो उनका मुल्क इसका भरपूर और मुंह तोड़ जवाब देगा। रजब तैयब एर्दोगान ने मुल्की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि अगर शामी फौज की जानिब से तुर्की की फौजियों को निशाना बनाया गया तो उनकी अफवाज शाम में किसी भी जगह शामी फौज पर हमला करने से नहीं कतराएगी। तुर्क सदर ने कहा कि अगर शामी फौज ने तुर्की की फौज को मामूली चोट भी पहुंचाई तो हम शाम में किसी भी मकाम पर हुकूमती फौज पर हमला करेंगे, उसमें इदलिब की कोई कैद नहीं है। एर्दोगान ने कहा कि हम फरवरी के आखिर तक इदलिब में तुर्की के निगरान चौकियों से शामी फौज को पीछे ढकेल कर रहेंगे। Şubat ayı sonuna kadar rejimi Soçi muhtırası sınırları dışına
yani gözlem noktalarımızın gerisine çıkartmakta kararlıyız. Bunun için karada ve havada her ne gerekiyorsa çekinmeden, tereddüt etmeden, hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız. ख्याल है कि शाम और तुर्की की फौजें शुमाल मगरबी शाम के इदलिब सूबे में हालिया दिनों में एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार हैं और एक दूसरे पर शदीद हमले जारी रखे हुए हैं, जिनमें दोनों जानिब से जाने नुकसान हुआ है। शामी फौज के हमले में फरवरी के महीने में तुर्की के कम से कम 13 फौजी हलाक हुए हैं। वहीं तुर्की की जवाबी कार्रवाई में मुतादिद शामी फौजी मारे गए हैं। शाम का इदलिब सूबा बागियों का आखिरी गढ़ है, जिस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए शामी फौज का ऑपरेशन जारी है। शामी फौज ने दावा किया है कि उसने इदलिब के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो उधर रूस ने तुर्की पर इल्जाम आयद किया है कि वो शामी इलाके इदलिब में बागियों को बेअसर करने से मुतालिक मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेशकोव के मुताबिक तुर्की ने एक दो तरफा मुआहिदे में इदलिब में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुपों को बेअसर करने की जिम्मेदारी अपने सर ली थी, मगर ये तमाम गिरोह इदलिब से न सिर्फ शामी फोर्सेस के खिलाफ अपने हमलों में शिद्दत ला चुके हैं, बल्कि वो रूसी अस्करी अहदाफ के खिलाफ भी कार्रवाइयां कर रहे हैं। ताहम तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा चाउश ओगलू ने कहा है कि उनका मुल्क शाम में मुस्तकिल सीज फायर के लिए रूस के साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए तैयार है। अमरीका इराक इत्तेहाद के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि अमरीकी फौज दाइश के अस्करियत पसंदों के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी कमांडर का कहना है कि अमरीकी फौज शाम में इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज और शाम में शामी डेमोक्रेटिक फोर्सेज एसडीएफ के साथ अपनी शराकतदारी और तरबियत जारी रखेगी। फजाइया के मेजर जनरल एरिक टी हिल ने कहा कि इराक और शाम में अमरीकी मिशन अब भी बदस्तूर बरकरार है। Mission here in Iraq and Syria under Operation Inherent Resolve has remained unchanged. We've been fighting with the Iraqis and with the Syrian Kurds since 2014 against Daesh, and our mission continues. We've had some changes in the environment, but we still continue to partner, and we continue to train, and we continue to execute our इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सेंट्रल बगदाद के मशहूर सेनाक ब्रिज को खोल दिया है, जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे के दौरान काफी दिनों से बंद था। यह ब्रिज इराक के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके ग्रीन जोन में वाक़ है, जहां कई ममालिक के सिफारत खाने मौजूद हैं। यह ब्रिज बगदाद के शहरियों की आमदोरफ्त का बेहतरीन वसीला भी है। كوادرنا الهندسية برفع الكتل الكونكريتية المترامية على جسر السنة كرخ ورصافة لغرض انسيابية فتح الطريق وانسيابية العجلات। खबर लबनान से है, जहां की नई हुकूमत ने पार्लियामेंट में एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। 128 रुकनी मुल्की पार्लियामान में वोटिंग के वक्त मौजूद 84 में से 63 अरकान ने वज़ीर आज़म हसन दियाब की काबीना के हक में वोट दिया। पार्लियामेंट के स्पीकर नबीह बीरी ने कहा कि 63 अरकान पार्लियामान ने नई हुकूमत पर एतमाद जताया, जबकि 20 ने मुखालिफत में वोटिंग की। एक रुकने पार्लियामेंट ने वोटिंग से परहेज किया। नई हुकूमत ने दीगर इकदामात के अलावा मुल्क में बदनवानी के खिलाफ इकदामात का वादा भी किया है। दूसरी तरफ बैरूत में पार्लियामान की इमारत के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें भी हुई, जिनमें तकरीबन 400 अफराद जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने अरकान को पार्लियामेंट के अंदर जाने से रोकने की कोशिश भी की। ख्याल है कि मुजाहिरीन ने हसन दियाबी की क़यादत वाली नई हुकूमत को मुस्तरद कर दिया है। نطلب الثقة من مجلسكم الكريم، لكن قلوبنا في الخارج تنبض إلى جانب مطالب الناس الذين نحن منهم، ونحن نتبنى مطالب الانتفاضة الثورة التي أحدثت زلزالا في البلد، لكن عيوننا عليكم تنتظر। आगे बढ़ेंगे। अफगान तालिबान ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया है कि वह अफगानिस्तान में तशद्दुद में 1 हफ्ते के लिए कमी उनकी पेशकश का जवाब दे। यह इंतबाह तालिबान और अमेरिकी खुसूसी मंदूब के दरमियान दोहा में कई हफ्तों तक जारी रहने वाली बातचीत के बाद जारी किया गया है।
अमरीका और तालिबान अफगानिस्तान में तशद्दुद में कमी लाने के मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं, ताहम अमरीका ने अभी तालिबान की इस पेशकश का बाज़ाब्ता जवाब नहीं दिया है। इसी वजह से तालिबान की लीडरशिप ने वाशिंगटन से कहा है कि वो इसकी पेशकश का जवाब दे। हालांकि चंद रोज कबल अमरीका की जानिब से कहा गया था कि तालिबान के साथ तशद्दुद में कमी का मुआहदा चंद दिनों में तय पा सकता है। तालिबान ने यह बयान तालिबान के वफ्द और अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मुफाहिमत जुल्म खलीलजाद के दरमियान कई हफ्तों तक जारी रहने वाली बातचीत के बाद जारी किया है। वहीं अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अफगान क़यादत को अमरीका और तालिबान में जारी मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया है। वज़ीर ख़ारजा ने इस हवाले से अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी और चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला से फ़ोन पर अलग अलग गुफ्तगू की। इस हवाले से अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने कहा कि माइक पोम्पियो ने अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन माहिदे पर जारी मुज़ाकरात नुमाया पेशरफ्त से आगाह किया। अफगान सदर के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इन्हें आगाह किया कि तालिबान ने तशद्दुद में नुमाया कमी की तजवीज़ दी है। तालिबान की तशद्दुद में नुमाया कमी की तजवीज़ को सदर गनी ने खुश आइन करार दिया है। अफगानिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल्ला ने भी कहा है कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा के साथ फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू में तालिबान के साथ जारी बातचीत के बारे में तबादला ख्याल हुआ है। अब्दुल्ला ने एक बयान में कहा है कि अमरीका के वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो ने इस तवक्को का इजहार किया कि तशद्दुद में कमी और तालिबान के साथ जारी बातचीत के नतीजे में अमन मुआहदा तय पा सकता है, जिससे बैनुल अफगानिस्तान मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगान क़यादत से एक ऐसे वक्त में बात की है जब हाल ही में अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मुफाहिमत जुल्म खलीलजाद ने दोहा में तालिबान के आला नुमाइंदे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की थी। अगरचे अमरीका के वज़ीर ख़ारजा से होने वाली गुफ्तगू के बाद सामने आने वाले बयानात से तासुर मिलता है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन समझौता तय पाने के इम्कानात हैं, ताहम अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका या तालिबान की तरफ से इस बारे में कोई बयान सामने नहीं आया है। याद रहे कि अमरीका और तालिबान के दरमियान दोहा में 1 साल से जायद अरसे से गैर मुल्की फौज के इनखला, अमन समझौते, बैनुल अफगान अमन मुज़ाकरात, जंगबंदी और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के सियासी निज़ाम के मामले पर बातचीत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और अब बढ़ते हैं सूडान की तरफ, जहां उबूरी हुकूमत और बागी ग्रुप साबिक सदर उमर अल-बशीर को बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के हवाले करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। इस बात का ऐलान एक आला हुकूमती ओहदेदार की जानिब से किया गया। उमर अल-बशीर हुकूमत को गुज़िश्ता बरस इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। दारफूर के तनाज़े के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम और नस्लकुशी के इल्जामात के तहत आलमी अदालत को मतलूब है। 76 साला उमर अल-बशीर पर बदनवानी और मुजाहिरीन के कत्ल के इल्जामात के तहत सूडानी अदलिया में भी मुकदमात कायम हैं और वो अपने घर पर नजरबंद हैं। और अब बात कोरोना वायरस के कहर की करेंगे। चीन में कोरोना वायरस से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 97 अफराद हलाक हुए हैं। इस तरह चीन में इस मूज़ी वायरस से हलाकतों की तादाद 1100 से बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला मुसलसल जारी है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस मोहलिक वायरस से हलाकतों के सिलसिले को कम करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चीन में इस मूज़ी वायरस ने मजीद 97 अफराद की जान ले ली। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक मुतासरा सूबे हुबाई में मजीद 97 अफराद की हलाकत के बाद महलूकीन की तादाद 1113 तक पहुँच गई है, जबकि मुतासरा अफराद की तादाद 44,600 से तजावुज़ कर गई है। चीनी हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2015 अफराद में इस वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। 30 जनवरी के बाद से किसी एक दिन के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की ये सबसे कम तादाद है। चीनी तिब्बी माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि अप्रैल के वस्त तक इस वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया जाएगा। दूसरी जानिब जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो की बंदरगाह पर लंगर अंदाज डायमंड प्रिंसेस नामी बहरी जहाज में भी मजीद 39 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद 3700 मुसाफिरों पर मुश्तमिल जहाज में मौजूद मुतासरा अफराद की तादाद 175 हो गई है। उधर आलमी इदारा सेहत WHO ने अब तक 1000 से ज़ायद अफराद की जान लेने वाले कोरोना वायरस की नई खतरनाक किस्म को कोविड-19 का बाकायदा नाम दे दिया है। आलमी इदारा सेहत के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस एडहानोम के मुताबिक
कोविड दरअसल कोरोना और वायरस के इब्तिदाई 2 हरूफ का मजमुआ है, जबकि 19 उस साल की नुमाइंदगी करता है जब ये वायरस पहली मर्तबा मंजर आम पर आया। WHO के सरबराह ने इस वबा को दुनिया के लिए शदीद खतरा करार दिया। उन्होंने कहा कि हालांकि कोरोना वायरस के 99% केसेस चीन में हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वबा दुनिया के लिए संगीन खतरा है और वायरस के असरात दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से ज्यादा संगीन हो सकते हैं। टेड्रोस एडहानोम ने खबरदार किया कि अगर कोरोना वायरस उन ममालिक तक पहुंचा जो इस वबा से निमटने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसके भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं। आलमी इदारे सेहत के सरबराह ने यह भी कहा कि सियासी, माशी और समाजी सतह पर हलचल पैदा करने के लिए एक वायरस दहशतगर्दाना हमले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर दुनिया इसके तई बेदार नहीं होती और इस वबा को अवाम का दुश्मन नंबर 1 नहीं समझती, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम अपने असबाक से कुछ सीखना नहीं चाहते। ये पूरी दुनिया और इंसानियत के लिए अव्वल नंबर का दुश्मन है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इस पर काबू पा लेने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस से दुनिया के 2 दर्जन से ज़्यादा ममालिक मुतासिर हैं और हांगकांग और फिलिपाइन में इस मूजी मर्ज की वजह से एक मौत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब। पेश है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना,